Greetings to all. Today we are going to begin with lesson 3, Deep Water of book Flamingo. This lesson is written by William Douglas. This is an extract from his autobiography of Men and Mountains. William Douglas wrote about his fear of water here in this autobiography and how he overcame it. In this lesson, he describes that incidents that led to the fear of water. He gives a very beautiful message. Courage is not the absence of fear, but triumph over it. ये कोटेशन नेल्सन मंडेला की आपने पढ़ी होगी. Courage is not the absence of fear, but triumph over it. And he proves here in this lesson the same. William Douglas was only 10 or 11 years old when a misadventure happened, which gave him a terror of water. He was around 10 or 11 years when he decided to learn swimming. He went to YMCA, Young Men's Christian Association. There was a pool. There he decided to learn swimming. Yakima River was treacherous. वो कहते हैं treacherous होता है धोखेबाज. That something you cannot depend upon. आप जिस पर निर्भर नहीं कर सकते. याकिमा रिवर के बारे में वो बताते हैं, यूएसए में है. याकिमा रिवर के लिए वो कहते हैं इट वॉज लाइक ट्रेचरस, क्योंकि उसमें कभी भी वाटर फ्लो ज़्यादा हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि जो ऊपर से बड़ा शांत दिखाई दे वो बहुत ज़्यादा हलचल समेटे हो अपने अंदर. His mother continually warned him against all the drownings that happened in the Yakima River. But YMCA pool is always safe swimming pool. There he decided to learn swimming. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. You must note the depth also because it plays a very important role there. It was around 2 or 3 feet deep at shallow end. Shallow होता है कम गहरा. जनरली पूल्स ऐसे ही होते हैं, एक तरफ से कम गहरे होते हैं, शैलो होते हैं, और दूसरी तरफ से ज़्यादा डेप्थ होती है, सो दैट पीपल मे लर्न स्विमिंग. दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स एंड दिस इज़ फॉर द all those swimmers who have perfected that. It was only 2 or 3 feet deep at shallow end and 9 feet deep at the other side. 9 feet. That's a good depth. Drop was gradual. Gradual क्या होता है? धीरे धीरे continuously, धीरे धीरे slope उसमें बना हुआ था. He got water wings and went to the pool. Water wings जिससे वो डूबेंगे नहीं. कहते हैं I hated to walk naked into it and show my skinny legs. स्विमिंग करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बट उन्हें डर लगता था. क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था. डर तो नहीं कहना चाहिए, बेसिकली डिसलाइक्ड इट बिकॉज ही वॉज वेरी स्किनी. स्किनी होता है थिन, वेरी थिन, बहुत ही कमज़ोर से थे. बट ही डिसाइडेड टू गो इन टू इट. इन द बिगनिंग ही हैड एन एवर्जन. कहता है फ्रॉम द बिगनिंग यानी जहाँ तक उन्हें याद है तब से He had an aversion to water. Aversion क्या होता है? To skip something, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से डरना. पानी से वो हमेशा ही डरते थे. When he was into it, and when it happened, when did it start? It started when he was only 3 or 4 years old. His father took him to a beach in California. A 3 or 4 year child generally has so many fears. Douglas has a fear of water. At that time he was really timid about going into water. He was with his father. Then what happened? बीच पर क्या होता है? A strong wave came. एक तेज़ लहर आती है पानी में. आप वहाँ रेत किनारे अपने पाँव उसमें जमा कर खड़े हैं, लेकिन एक तेज़ लहर आकर आप गिरा देती है, पैरों के नीचे से रेत निकल जाता है. यही उनके साथ हुआ. When his father took him to the beach, they were standing in the surf मतलब झाग, वो जो कॉर्नर किनारे पर खड़े थे. He was almost hung on to him. उनसे चिपके हुए थे, मानो उनसे झूल रहे थे, लटक रहे थे. But still the waves knocked him down and swept over him. He was buried in water. His breath was gone. He was frightened. आई किसके लिए यूज़ किया गया पूरे लेसन में? डगलस इज़ द राइटर एंड नरेटर, बोथ दोनों वही हैं.
पानी में कुछ सेकंड्स के लिए जब वो थे, कुछ ही सेकंड के लिए, तो सांस नहीं आ रहा था, डर गए। हिज फादर लाफ्ड, पिता हंस पड़े। क्यों? क्योंकि जनरली एक बीच पर ऐसे होता है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट अ टेरर ऑफ वाटर, of what terror of overpowering force of the waves, that terror of water had a deep dug into Douglas' heart. डगलस के मन में हमेशा के लिए वो बस गया। Then he went to YMCA pool. So his fear of water began when he was around 3 or 4 years old. But he was 10 or 11 when he decided to learn swimming. He went to YMCA pool. That revived his unpleasant memories. कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं थी क्योंकि उन्हें डर लगा था तब। एंड स्टर्ड इज चाइल्डिश फियर। स्टर क्या होता है? टू मूव। बचपन का जो डर था, चाइल्डिश यानी बच्चों की तरह। एंड इट इज़ नॉट टेकन इन पॉजिटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। पॉजिटिव के लिए जो बच्चों की तरह इनोसेंस होती है उसके लिए चाइल्ड लाइक वर्ड यूज़ किया जाता है। सो इन अ लिटिल वाइल but he gathered his confidence and he paddled with his new water wings, watching the other boys trying to learn by aping them. Ape क्या होता है? बंदर। aping यानी नकल करते हुए सीखना, to imitate, नकल करते हुए। like other boys were doing, he decided he was aping them and he decided to learn. He was learning them and he did that 2 or 3 times on different days. And when he was just beginning to feel at ease in water, at ease, comfort, when a misadventure happened. एक मिसएडवेंचर, एक दुर्घटना हुई वहाँ उनके साथ एट YMCA पूल। कोई ज़्यादा डर नहीं था मन में, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे। एंड व्हेन ही वाज बिगिनिंग टू फील कंफर्टेबल इन वाटर, पानी में थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे थे कि तभी एक ऐसी दुर्घटना हुई कि उनके मन में पानी का डर बस गया। टेरर, वो फियर वर्ड भी यूज़ नहीं करते, रादर ही यूजेज टेरर, आतंक। क्या हुआ था? वन डे ही वेंट टू पूल, नोबडी एल्स हैड कम, द प्लेस वॉज वेरी क्वाइट, वाटर वॉज स्टिल, कोई नहीं आया था, शांत था। पानी स्टिल इसीलिए कहा क्योंकि कोई उसमें स्विमिंग नहीं कर रहा था। टाइल बॉटम जो थी, स्विमिंग पूल बना हुआ है तो नीचे टाइल्स लगी हुई होती हैं, वो बिल्कुल साफ पानी चमक रहा था। इट वॉज क्लीन एज बाथटब, दूर से देखने में तो वो क्लीन ही लग रहा था, बिल्कुल साफ पानी। ही वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन, टिमिड घबराना, वो थोड़े घबरा रहे थे। सॉफ्ट, टिमिड के लिए हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं, यहाँ के सेंस में यूज़ किया गया घबराने के लिए। वो थोड़े घबरा रहे थे कि अंदर अकेले जाएं, तो पूल के पास बैठकर वेट करने लगे फॉर अदर्स टू कम। He had not been there when came a big bruiser of boy, a healthy boy. Probably the boy was around 18 years old. He had thick hair on his chest, beautiful physical specimen. जैसे कि एक जो बहुत अच्छी जिसकी फिजिक हो, क्योंकि डगलस तो बड़े स्किनी थे, दुबले पतले से थे। एक 18 वर्ष के लड़के आए, अच्छा था दिखने में, हेल्दी बॉय। He has good physique with legs and arms that showed rippling muscles. legs arms पे muscles थे, मतलब लग रहा था कि जिमिंग करते हैं। And the boy yelled, shouted, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" duck बैठना, वैसे यहाँ किस लिए यूज़ किया है कि वो डूब जाए। कैसा लगेगा अगर तुम्हें पानी में कुछ देर के लिए तुम रहो। इतना कहते ही with that he picked डगलस अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड। उसने क्या किया? एक मजाक किया डगलस के साथ, अकेले थे, कोई और था ही नहीं। उठाया और उन्हें पानी में किस तरफ फेंक दिया? 9 फीट डीप जो था, दैट साइड। लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, जिस तरह बैठे थे, क्योंकि हेल्दी था और डगलस केवल 10 साल का बच्चा। उठाया और ऐसे सिटिंग पोजीशन में ही उसे उठाया और उसे पानी में फेंक दिया, और वैसे ही वो वहाँ पानी में नीचे गिरे। जैसे ही पानी में गए, ही swallowed some water and went at once at the bottom, नीचे की तरफ जाने लगे। He was frightened, स्विमिंग तो आती नहीं थी, अभी तो सीख ही रहे थे। So he was frightened but not yet frightened out of my wits। ये आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, out of wits। डर गए थे। इंसान जब डर जाता है तो उसके साथ अक्सर क्या होता है, हम अपना होश खो बैठते हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती और वो पानी में गिर जाए, ऐसे गहरे पानी में,
तो वो हाथ पैर चलाना सबसे पहले शुरू करता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कैसे बचे, क्या करें। लेकिन डगलस इतने समझदार थे, डर ज़रूर गए लेकिन दिमाग ने साथ नहीं छोड़ा, अपने होश नहीं गंवाए, अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं छोड़ा। क्या किया? ऑन द वे डाउन, नीचे जा रहे थे, ही प्लान, एक प्लान किया। क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, क्या प्लान बनाया? जैसे ही नीचे जाएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप। नीचे जैसे ही टाइल बॉटम को टच करेंगे, उससे फोर्सफुली टच करेंगे तो एकदम अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक जंप वो लेंगे। कम टू द सरफेस, इससे क्या होगा? ऊपर सरफेस तक आ जाएंगे। जैसे किसी स्प्रिंग को आप ज़ोर से उछालें, दबाएं तो वो ज़ोर से उछलता है, ऐसे उन्होंने सोचा कि नीचे जाएंगे, एक जंप ऊपर की तरफ लेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, पानी में बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। पानी में जब सीधा लेट जाते हैं तो आप डूबते नहीं हैं, उस पानी पर फ्लोट करने लगते हैं, उस पर फ्लोट करते हैं हम। तब यही उन्होंने प्लान किया कि वो उस पर फ्लोट करने लगेंगे इस तरह से। एंड देन ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पैडलिंग तो सीख ली थी थोड़ा सा, और धीरे धीरे एज तक पैडल करते हुए आ जाएंगे। तो क्या प्लान बनाया? नीचे जाएंगे, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड्स एक बिग जंप लेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, फ्लैट लेटेंगे, एंड देन ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। लेकिन अगर ये सब चीज़ें इतनी ही ईजी होती तो शायद कोई भी ड्राउनिंग से किसी की डेथ नहीं हो पाती। व्हाट हैपन नेक्स्ट, वील रीड टुमारो। थैंक यू।